خوش آمدید ناظرین، آج ہماری واپسی ہے اور ہم ناران سے نکلے ہیں اور ناران کے رستے پر موجود ہیں۔ ابھی بھی خوبصورت مناظر ہمارے پیچھے موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایفرٹ تھی ہماری طرف سے، میکس میڈیا کی پوری ٹیم کی طرف سے، کہ ہم آپ لوگوں کو یہ خوبصورت مناظر دکھائیں۔ یہاں جتنی خوبصورتی ہے، یہاں کے حالات کیسے ہیں، اس کا روٹ کیسا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم نے آپ کا انٹریکشن کرائی تاکہ آپ لوگوں کو اگر یہاں آنا ہو تو آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ دوسرا یہ کہ قدرتی مناظر آپ لوگوں کو دکھائے جائیں، یہاں سے جو ہماری لرننگ ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائی جائے۔ تقریباً 3 دن سے ہم یہاں موجود ہیں معین، اور یہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ بھی کیا۔ ہوٹلز میں، دوسری جگہ پر جب ہم گاڑی میں تھے۔ معین، آپ کو کیسا لگا یہاں پر آ کر؟ بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی آنے کی اور بہت زیادہ مزہ بھی آیا، اتنی خوبصورت وادیوں کو دیکھ کر، اتنے خوبصورت قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر بہت مجھے تو بہت مزہ آیا اور بہت انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، انجوائے کرنے کی بھی جگہ ہے نا۔ اور ہمارے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ جو ہماری میکس میڈیا کی پروڈکشن ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور ان کو بھی بتائیے گا کہ ہماری یہ آپ کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہم آپ لوگوں کے لیے سفر نامہ جو لے کر آئیں آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور آپ لوگوں کے کامنٹس، آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ آرا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس چیز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہم نے بہتر کی ہیں۔ تو یہ آپ لوگ ہمیں اگر ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری جرنی پسند آئی تو میکس میڈیا آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے ٹرپ اور اس طرح کی چیزیں ارینج کرتا رہے گا اور اس طرح کے ایونٹس ارینج کرتا رہے گا۔ اعجاز، میرے خیال سے اگلا ٹرپ ہمیں کوئی سندھ کے ایسے علاقے میں کرنا چاہیے جہاں پر عوام نہیں پہنچ پاتی۔ ہاں، بہت سارے ایسے میرے ذہن میں ہیں چیزیں، اور ہماری ٹیم اس کو ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ ہم اس کی طرف جائیں گے۔ ہمارا گلگت کی طرف بھی پروگرام بن رہا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن پر انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا اور آپ لوگوں کا تعاون رہا تو ہم ضرور ان جگہوں پر بھی پہنچیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور جس طریقے سے بھی ہم لوگوں نے اس کو جتنا زیادہ انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی، جتنا زیادہ انفارمیٹیو بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں کو دی جائے، جو لوگ یہاں پر کیا سوچتے ہیں، ان کے اندر کیا محرومیاں ہیں اور ان کو کس چیز کی خوشی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ اور اگر آپ آئیں تو آپ کو کیا سیفٹی میجرمنٹس لینی ہوں گی، کہ آپ لوگ اگر یہاں پر آئے تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی آپ ہماری اس پورے سفر نامے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے آج ہمارا یہ آخری شوٹ ہے، اور اگر ہمیں رستے میں کوئی اور موقع ملتا ہے تو ہم ضرور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ انٹریکشن کریں گے، وہاں سے بھی آپ لوگوں کے لیے پروگرام کریں گے، چونکہ تھک بہت گئے ہیں اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ تھکاوٹ ایسی ہوتی ہے، ہمیں مال روڈ پر بھی پروگرام کرنا تھا، وہ بھی ہم نے اسکپ کر دیا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو اگر ہمیں موقع ملا اور ٹائم نے اجازت دی تو ہم انشاءاللہ رستے میں بھی آج جتنے بھی خوبصورت مقامات ملیں گے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور وہاں سے پروگرام ابھی ہماری آخری ہم کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ ابھی یہاں سے ہم راول پنڈی جا رہے ہیں، بالا کوٹ کے رستے سے ہوتے ہوئے ہم پنڈی جائیں گے انشاءاللہ، اور بالا کوٹ میں اگر ہمیں کوئی ایسی جگہ ملتی ہے تو ہم ناظرین کے ساتھ ضرور انٹریکشن کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم رستے میں جو بھی خوبصورت مقامات آئیں گے ہم وہ آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں وادی کاغان میں، جو بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے کنہار ہے جو آگے بالا کوٹ تک جاتا ہے، اور اسی دریا کے کنارے پر بیٹھ کر بھی ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک پروگرام بھی کیا تھا جو معین امید سیر کا پروگرام ہمارا تھا۔ اور یہ کتنا خوبصورت اور صاف پانی ہے، اور جیسے جیسے آگے جاتا ہے یہ بہت زیادہ بڑا دریا بنتا جاتا ہے۔ بس خوبصورتی دیکھیں آپ کہ 3 جو ہے نا روز کے اندر پانی جا رہا ہے، وہ الگ سائڈ ہے جو سیکنڈ ہے جو تھرڈ ہے، بڑا خوبصورت مناظر ہے۔ یہ بیچ میں پتھر ہیں اور درخت بھی دریا کے بیچ بھی موجود ہیں، اور یہاں پر لوگوں نے فش پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ٹروٹ فش جو ہے وہ یہاں کی سب سے مشہور جو سوغات سمجھی جاتی ہے، تو جگہ جگہ پر ان کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر ابھی ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں لوگ، اور وہ مچھلی کا جو ہے نا وہ بھی لطف اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اگر ہماری ٹیم آگے چل کر کوئی ٹروٹ کا انتظام کرتی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے لنچ کے اندر کوئی مچھلی وغیرہ کھا لی جائے، کیونکہ اس ٹھنڈ کے اندر اگر مچھلی ہو جائے نا تو تھوڑی سی گرمائش کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ ابھی بالا کوٹ چل کر ہم جو ہے وہاں پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کا پروگرام بناتے ہیں، اور بالا کوٹ میں جا کر انشاءاللہ ناظرین سے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین،
इस वक्त हम मौजूद हैं मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में और एक खूबसूरत दरिया के किनारे पर हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे और हमारे साथ इस वक्त एसपी साहब मौजूद हैं जो मानसेरा के एसपी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और यहाँ के इंतजामात के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आप तमाम सबको वेलकम टू मानसेरा। मानसेरा पुलिस ने टूरिज्म के लिए इस साल इंतहाई गैर मामूली इकदाम किए हैं। सिक्योरिटी के लिए हमने मुख्तलिफ पिकेट्स बनाई हैं और तकरीबन 20 से 25 जगहों पे स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस भी टूरिस्ट पुलिस भी सेपरेट टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी हमने डिप्यूट की है। रेस्क्यू की गाड़ियां भी हमने स्पेशल भिजवाई हैं। इसके अलावा रिकवरी के लिए भी हमने किया है कि ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो टूरिस्ट की बर वक्त हेल्प हो सके। सिक्योरिटी के लिहाज से इंशाल्लाह इस दफ़ा मिसाली इंतजाम किए गए हैं। कोई एक सिंगल इंसिडेंट भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टूरिस्ट को तकलीफ हुई हो। तो टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनको वेलकम करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह। और मैं इसी सिलसिले में यहाँ पे कुछ टूरिस्ट बैठे थे, मैं नीचे स्पेशल आया हूँ उनसे मिलने के लिए। बाकी आप अपने बाकी साथियों को भी, दोस्तों को भी कह के बुला सकते हैं कि ये टूरिज्म के लिए इंतहाई बेहतरीन एरिया है। यहाँ पे वो आ सकते हैं, एनी टाइम आ सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत के लिए, उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि एसपी साहब हमें बता रहे थे सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में और हमने आपको दिखाया भी। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हम तमाम रास्ते आपको वो विजुअल दिखाते हुए गए कि जहाँ पर पुलिस एहलकार ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर मौजूद थे। जहाँ पर भी कोई ऐसी कंडीशन थी तो वो पहले से हमें वहाँ पर खबरदार कर रहे थे कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पर दूसरे मामलात हैं। तो हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई हुई। सर आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ से लेकर हमने नारायण तक देखा, कागान तक देखा, बहुत अच्छी सड़कें हैं और आगे, लेकिन नारायण से आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सड़कें मौजूद नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसे एहलकार हमें एफसी के एहलकार नजर आए जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उसके आगे अगर कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसा मामला है वहाँ पर ऐसे एहलकार हमें नजर नहीं आए। नहीं, मेरे ख्याल है आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नारायण से लेके आगे तकरीबन मानसेरा डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन 70-80 किलोमीटर एरिया बनता है बाबूसर टॉप तक। तो वहाँ पे भी हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा रेगुलर फोर्स के एहलकार हैं, पोस्टें हमने बनाई हैं, उनको गाड़ियां नहीं हमने दी हैं और ट्रैफिक का एक्स्ट्रा स्टाफ वहाँ पे लगाया है, राइडर्स मोटरसाइकिल लगाए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी नारायण तक है। आप शायद बात कर रहे हो कि झील रोड पे, आप लोग झील रोड पे गए हैं तो वहाँ पे दरमियान में एफसी का एक किला है, एफसी की एक लाइन है, पोस्ट है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे एफसी किले के बाहर वो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए शायद वो खड़े हों। हमारी नफरी ट्रैफिक की भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की थ्रू आउट हमारे डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 190 किलोमीटर्स के एरिया में हमारी नफरी थ्रू आउट गाड़ियों समेत इंशाल्लाह अलर्ट है, हम मौजूद हैं। आपने नारायण में देखा होगा हमने टूरिस्ट की सहूलियत के लिए एक पुलिस टेंट विलेज भी लगाया है, शायद आपका इत्तेफाक हुआ, जहाँ पे लेडीज को जगह नहीं मिलती, बच्चे हैं, माजूर हैं, औरतें हैं, उनके लिए हमने फ्री अवकाश यहाँ पे रखा हुआ है पुलिस टेंट विलेज। हमने वहाँ पे 15 to 20 टेंट्स लगाए हैं और हम फ्री लोगों को वहाँ पे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर। बिल्कुल सर, ये सारे मामला हम देख चुके। मैं वही झील रोड की बात कर रहा था, वहाँ पर आप बता रहे हैं कि वहाँ पर भी एहलकार मौजूद है। नाज़रीन, जो उस वक्त शायद हमें नजर ना आए हो, यहाँ पर हमारे साथ तहसील मेंबर जाहिद चंद साहब भी मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो हम आप दोस्तों को, अपने भाइयों को जो पंजाब से आए हुए हैं, सबको वेलकम करते हैं यहाँ पे। दूसरा मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं, मैं तहसील मेंबर मानसेरा पीटीआई से मेरा ताल्लुक है। ये आप लोगों ने आप देख लिया, ये लोग पंजाब पूरे में जो नारा लगाया जाता है जी केपीके में ये जो सी तब्दीली आई और क्या तब्दीली आई, ये आपने खुद अंदाजा कर लिया कि आपने हजारा डिवीजन के अंदर जब आप कदम रखते हैं तो जगह जगह पे आपको स्क्वाड नजर आते हैं और इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आए और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज किया गया और इतनी अच्छी तरीके से उनको गाइड किया गया कि अभी तक यहाँ पे किसी किस्म की इस पूरे इवेंट के दौरान जो हमारा इतना बड़ा इवेंट गुजरता है ईद का, उसमें किसी किस्म की कोई क्वालिटी नजर नहीं आई, ना ही कहीं से सुनी गई है। हालांकि जितना ये दुश्वार गुजार रास्ता है और इतनी खूबसूरत झील और इतने खूबसूरत ये आपको वादी नजर आती है, उसके मुकाबले में यहाँ पे आपको दुनिया में कहीं पे भी इतने खूबसूरत आपको व्यूज और ये चीजें नजर नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं अपने
जो से DIG हजारा हैं उनको भी उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, DPO मानसरा उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ASP साहब हैं आरिफ जावेद साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम जहाँ पे जितने भी SHOs तैनात किए गए और तमाम जितने पुलिस की फोर्स जितनी तैनात की, इनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। और जितना लोगों के साथ इन्होंने ताउन किया और इतने अच्छे तरीके से इन लोगों को इस इलाके में विजिट करवाया और इतने अच्छे तरीके से इनको 24 आवर जहाँ पे इन्होंने ड्यूटीज दी 25 रमजान के बाद आज तक अभी तक यहाँ ये तकरीबन 24 आवर ड्यूटीज कर रहे हैं। और ये अब आप चीज को आपको नुमाया नजर आएगी कि वाकई तब्दीली जो सी है यहाँ की पुलिस में आ चुकी है, और इंशाल्लाह जो जो आगे टाइम गुजरता जाएगा और आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। तो आप लोग जितना मोटिवेट कर सकें इन लोगों को, टूरिस्ट को इस इलाके में आने के लिए, इंशाल्लाह हमारे इलाके के लोग भी बड़े ताउन करने वाले लोगों में से हैं। कहीं पे भी आप जाएंगे आपको किसी किस्म के, हमारे खास तौर पे या हजारा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी कौमें रहती हैं, आपको हर जगह वेलकम करने के लिए नजर आएगी और किसी किस्म को आपको बुरी नजर से नहीं देखेगी। सबसे बड़ी बात है अच्छी नजर से देखेंगे और वेलकम करते हुए आपको नजर आएंगे। इसीलिए फैमिलियों का आने का रुझान पंजाब से, सिंध से, कराची से, जितने भी इलाके हैं हमारे वहां से यहाँ पे इसीलिए ज्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं, होटलिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके मुताबिक इसी तरह ही आपको जितनी भी पब्लिक मिलती है, अवाम यहाँ पे नजर आती है। तो सबसे बड़ा फ्यूल का प्रॉब्लम रहता था यहाँ पे ईद के दौरान। इस दौरान सबसे बड़ी आप ये चीज देखें कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले मीटिंग बुला के ये जितने भी DPOs वगैरह हैं, DIGs वगैरह हैं, SP साहब हैं, इनको बुला के फ्यूल के लिए उन्होंने पहला इनका हल निकाला कि यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे गाड़ियां फ्यूल के लिए यहाँ पे खड़ी कर दी तमाम पंप्स पे, ताकि फ्यूल की प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। तो ये चीजें सबसे बड़ी मैटर करती हैं। अभी यही चीजें अगर इतना टूरिस्ट पंजाब के किसी शहर में भी चला जाए तो मुझे नहीं नजर आता कि वहां की पुलिस इसको मेंटेन कर सके। वहां पे तो गुल्लू भट्टों का राज है, तो मेरे ख्याल में इन लोगों का तो वो हाल करके वो भेज देंगे कि टूरिस्ट वहां पे जाने का नाम नहीं लेंगे। सर जी, यहाँ पर मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इश्यूज नजर आए। जब हम नारायण से आगे जाते हैं, झील की तरफ जाते हैं या फिर हम लालाजार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर रोड नहीं है, मतलब कच्चे रोड है। एक तो इशू हमें वहाँ पर ये नजर आया। देखिए वहाँ पे रोड्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो वो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। अभी तो आप इतने मजे से जा रहे हैं, अगर आप ये इसके दिसंबर के बाद किसी महीने में आए तो आप ये बालाकोट से ऊपर नहीं जा सकते। आप ये सोच ही नहीं सकते कि हम ये वही रोड है जहाँ पे कम से कम 5-6 फुट बर्फ पड़ी होती है। और नारायण कागा की जो आप बात करें, ये भी आप लोग गनीमत समझें कि जिसके ऊपर जीप चल रही है, नहीं तो ये पूरी ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर काट के यहाँ के लोग मशीनें लगा के उनके साथ ताउन करके ग्लेशियर को काटते हैं, उसमें से ये रास्ता निकालते हैं ताकि हमारा टूरिस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा आ सके। जो आप बात करें, यहाँ पे जितनी मर्जी आप सड़क बना लें, यहाँ पे सड़क नहीं रुक सकती। तो वो जो चीज आप कंप्लेन कर रहे हैं बार बार जिस चीज की, तो वो हो नहीं सकती है। सर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम सुनते थे 10-15 साल पहले कि कागान से आगे रोड नहीं बन सकता, तो वो भी पॉसिबल किया गया कि कागान से नारायण तक रोड बनाया गया। तो आगे इस वक्त यहाँ पर भी ग्लेशियर्स होते थे, यहाँ पर भी बर्फ पड़ी हुई होती, बर्फ वगैरह तो होती थी यहाँ पर भी, और चश्मे होते थे जिसकी वजह से रोड खराब हो जाते थे। देखिए जो पोजीशन आप दोनों में बहुत डिफरेंट है। जो झील की तरफ रोड जाती है उसमें चीज ये हो रहा है कि वो एक पहाड़ है, उस पहाड़ को कटिंग करके एक झील, जो आप दूसरी साइड से कर रहे हैं, जो आप जगह बता रहे हैं, वहां से तो एक रोड निकल रही है, उसको साइडों से पानी की निकासी का रास्ता दिया जाता है। ये तो एक ग्लेशियर कट है, लेफ्ट राइट दोनों पे ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर के दरमियान से आप ये 24 आवर मतलब साल के 12 महीने इसके दरमियान से पानी गुजरता रहेगा, इसलिए वो रोड रुक ही नहीं सकती है। वो मेन मसला ये, हाँ उसके लिए एक हाल है कि जो उनसे आपको सूबाई गवर्नमेंट या कुछ इतना बड़ा फंड दे, जो RCC किया जाए, जहाँ पे लेंटर डाले जाएं और नीचे सरिया जाल बिछा के इस रोड को किया जाए। मुमकिन तो हर काम है, दुनिया में क्या क्या काम नहीं होते, लेकिन अब हम लोग आप ये भी तो देखें ना, कितना बड़ा टूरिस्ट है, किसी जगह पे आपसे कोई इलादा पर्ची ली गई है, कोई इलादा कोई टूल टैक्स एक्स्ट्रा पे लिया गया, नहीं लिया गया। अगर यही चीज अगर आप छोटे से मरी चले जाएं, पंजाब में आता है 50 रुपए की पर्ची आपको मरी के टूल प्लाजा बाराकाऊ से क्रॉस करते हैं, 50 की पर्ची ये ली जाती है। एक मिनट मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ। अब नारायण का जो सफर है इस्लामाबाद से, हसन अब्दाल से, कहाँ आए आप?
अब इस्लामाबाद से बाराकऊ का जो जहाँ पे पर्ची ली जाती है वो 20 मिनट का रास्ता है, आप 4 घंटे की मुसाफत 5 घंटे की तय करके बालाकोट पहुंचे हैं। एक मिनट मेरे सुन ले, नारायण एंट्री है, आगे वो आगे जो सी आप झील की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस है उसकी अमाउंट में। अभी दरअसल यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शंस हो चुके हैं और वो वर्किंग में है, डिस्ट्रिक्ट तहसील जितनी भी है फंडिंग हो रही है, ये नहीं है कि फंड नहीं आ रहा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखिए टीएमए जो फंड लेता है वो लेने के बाद आप ये सिर्फ मेन रोड देख रहे हैं, इसके साथ मुल्क का आबादियां हैं जहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां जहाँ पे रोड्स की जरूरत होती है, पानी का मसला होता है, बिजली का मसला होता है। अब ये फंड क्या किया जाता है, टीएमओ इकट्ठा करता है, अपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबरान हैं उनको ये फंड तकसीम किया जाता है और वो अपने हल्के में लगाते हैं। ये तरीका जो भी है ये जी जी ठीक कह रहे हैं आप, जो लोग आ रहे हैं ये बर्डन उन पे तो नहीं डाला जाएगा ना, जो लोग जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मैं एक मिनट, आप यूज कर रहे हैं ना अब ये रोड। हाँ सर देखें एक मिनट ना, आपसे रोड का ले रहे हैं, एक मिनट मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है, मैं आप ठीक कह रहे हैं आप, नहीं हाईवे का नहीं है, लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है। अब दरअसल यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे अगर आपसे 100 रुपए की एक पर्ची माइनर से ली जा रही है, अगर आप उसको चेक करें, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ ना, एक गाड़ी का 100 रुपया आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। आप इसका डिस्टेंस देखें, आप कहाँ तक जाते हैं और कैसी रोड मिली है आपको, एक मिनट, आप कहाँ तक जा रहे हैं और कैसी रोड मिली है आपको। आपको ये रोडें शायद पंजाब में इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप टीम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुने, आप ये जो रिपेयरिंग आती है ना, 15 साल हो चुके मुझे इन्हीं रोडों पे आते हैं, यही सूरत हाल है, यही सारा कुछ है, लेकिन कितनी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, मेरा ख्याल है 30,000 से ज्यादा गाड़ी यहाँ से अभी गुजरी है, ठीक है। 100 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कितनी अमाउंट होती है, ये उन्होंने पूरी बोझ को डाला जा रहा है, उनको जब बजट मिलता है वो प्रायोरिटी किस काम पे लगाया है ना, जो उसमें ये बात मैं आपको थोड़ी सी बात ये क्लियर करता जाऊं, इस टैक्सेशन का हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है सच कोई भी नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम लगा है, ये टीएमए बालाकोट यहाँ पे बनी है, तो उन्होंने अपनी इनकम जनरेशन के लिए ये टैक्स लगाया है। ये होपफुली इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है और ये नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो ये पैसे इसी रोड पे टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए इंशाल्लाह ये पैसे लगेंगे। ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है इंशाल्लाह। ये रकम जो है आप नेक्स्ट ईयर आएंगे, आपको इंशाल्लाह कुछ यहाँ पे बेहतर स्पॉट्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको बेहतर फैसिलिटी नजर आएगी। ये किसी की पॉकेट में नहीं जा रहा, ये मैं इसकी गारंटी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल उसकी हैसियत से कहता हूँ कि ये। अब एक सवाल सर और है आपसे कि जब हम झील सैफुल मुलूक पर पहुंचते हैं तो वहां पर डस्टबिन हमें नजर आए, जो बहुत काबिल तहसीन बात है कि हर 100 मीटर के फासले पर एक डस्टबिन लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद झील पर बहुत ज्यादा गंदगी मौजूद थी। कि आम आवाम आने वाली, हमने उनसे भी बात की और उनको भी ये चीज समझाई कि भाई ये आप ही का पॉइंट है। जैसे अभी एक बच्चा दरिया के अंदर बोतल फेंक के चला गया, हम सब बैठे हुए थे, तो वहां पर भी झील के ऊपर हमें ऐसे लोग नजर आए, हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हमें कोई ऐसा टीएमए का एहलकार नजर नहीं आया, कोई ऐसी टीम नजर नहीं आई जो साथ साथ झील की सफाई करती रहे। दरअसल यहाँ पे हमारी मीडिया की भी बड़ी कमजोरियां हैं, क्योंकि हमारे मीडिया भी ऊपर तक नहीं जाता जहां तक आप गए हैं, ठीक है ना। कुछ जगह ऐसी हैं जहां तक हमारा मीडिया नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ये चीज चल रही है। क्योंकि हमारे इलाके में, इस इलाके में ज्यादातर एक K2 चैनल चलता है, जिसके विसाजत से लोगों को ज्यादातर वो लोग देखते हैं, और पीटीवी तो चैनल इतना बड़ा है कि उसको ये चीजें वो कवरेज में आती नहीं है। वो इतने मतलब उनको हाई प्रोफाइल लोग जिन्हें कह दें आप, उनके जो साफी हैं, तो वो गवर्नमेंट के मामलात में इतना उलझा हुआ है कि वो यहाँ तक नहीं आता। आपने जो बात बहुत अच्छी की, क्योंकि उसकी वजह के अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। यहाँ पे जो आप बातें कर रहे हैं वो थोड़ा सा, आप अगर बल्दियात का इलेक्शन समझेंगे तो आपको ये क्लियर होंगी। ये जितना फंड मिलता है, जो आपने ये भी पर्ची मुझे दिखाई, मैंने देखी नहीं थी, ठीक है। अभी ये जो पर्ची है ये आपकी टीएमओ हमारी यहाँ पे लेती है। अब ये टीएमओ ये जब टूल टैक्स का ये पैसा इकट्ठा कर दी, ये ठेका दिया जाता है उसको, उसका जो फंड आता है
وہ لے کے اسی علاقے پہ خرچ کیا جاتا ہے, یہ کسی اور تحصیل میں نہیں جائے گا. اب جو چیز آپ بات کر رہے ہیں اس کو وہ ہمارے یہ تحصیل کا جو ناظم ہے یہ اس کی کمزوریاں ہیں, اور اس کی یہ تحصیل ناظم جو بالاکوٹ ہے یہ اس کی کمزوریاں ہیں. کہ اس کو چاہیے تھا عید سے پہلے ایک اجلاس بلانا چاہیے تھا, اور اپنے جتنے تحصیل کے ممبر تھے ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے تھی کہ یہاں پہ اس علاقے میں جا کے آپ نے کوئی پمفلٹ لگانے ہیں, بینر لگانے ہیں, اور کم از کم ہمارے جو سیاح یہاں پہ اتنے دور سے آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تو یہاں پہ چند ٹائم گزار کے یا کچھ گھنٹے گزار کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ بیچارے یہ جو آپ لوگ جتنا کچرا یہ پھینک کے چلے جاتے ہیں یہ ان کی زندگیوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. پہاڑی علاقہ ہے, اچھا ریسکیو کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, کوئی پہاڑی علاقہ ہے, کچھ خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کے لیے کے پی کے کی طرف سے کیا انتظام کیے گئے ہیں, ٹی ایم اے کی ٹی ایم او کی طرف سے؟ ریسکیو کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے آپ کو بات بتائی تھی شروع میں کہ ہم نے ریکوری وہیکلز تقریباً 10 سے 12 ریکوری وہیکلز ناران سے بالاکوٹ کے درمیان ہم نے مختلف سٹیشنز پہ ہم نے پارک کی ہوئی ہیں ان کیس آف ایکسیڈنٹ ایمرجنسی فوری طور پہ. اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہم نے یہاں پہ جو جتنے بی ایچ یو آر ایچ سی روڈ پہ تھے اور پیرامیڈک سٹاف کو بھی ہم نے یہاں پہ باؤنڈ کیا ہوا ہے. اور بڑی گاڑیاں اس کے لیے سپوز کوئی سلائڈ بڑی آ جاتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے 4 بڑی گاڑیاں ہائر کر کے یہاں پہ 4 مختلف اسٹیشنز پہ رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے. لاسٹ ایئر یہاں پہ 15 سے 20 کیجویلٹی ہوئی تھی لاسٹ ایئر. ابھی الحمدللہ ہوپ فلی ایک جیپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کسی قسم کا ٹورسٹ کے ساتھ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا, اور پولیس سب سے پہلے پہنچی ہے یہاں پہ. انشاءاللہ ہم 20 دن سے 25 دن سے ورک کر رہے ہیں, اور وہ ان کی میں بات جہاں تک کرتا چلوں اس کی جھیل سیف الملوک کی, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جھیل سیف الملوک کے لیے ہم نے پولیس سے 50 والنٹیئر لے کے ساری جھیل ہم نے آخری رمضان پہ صاف کرائی تھی. ساری جھیل ہم نے اپنے سورسز سے صاف کرائی تھی, لیکن اس میں پبلک کی اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی آپ صاف کریں گے. ابھی تک ہمارے اسٹیمیٹ کے مطابق 2 سے 2.5 لاکھ ٹورسٹ یہاں پہ آ چکے ہیں. تو جہاں پہ 2.5 لاکھ ٹورسٹ آئیں گے, اور ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ کچرے کے متعلق کیا کانسیپٹ ہے, آپ جتنا بھی صاف کریں جب تک لوگ پراپر جگہ پہ کچرا یا نہیں پھینکیں گے نہیں ہو سکتا. پھر بھی حالات دیکھیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ بہت جھیل کا ایریا بہت صاف ہے. آپ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بزنس مین موجود ہیں جناب عدیل شہباز صاحب, ہم ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر آپ یہیں سے بلانگ کرتے ہیں کے پی کے سے؟ ہاں جی, میں کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں, ہری پور سے بلانگ کرتا ہوں جی, ہری پور سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا, تو آپ یہاں پر اکثر اوقات آتے ہیں, تو آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے پچھلی لوکل گورنمنٹ اور اس لوکل گورنمنٹ میں؟ جی بہتری آئے گی اس میں. ہمیں دیکھیں صرف گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح میں یہاں گھومنے آیا ہوں, اگر میں کوئی چیز یوز کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی چیزوں کو خود محفوظ کر کے پراپر ڈسٹ بن تک پہنچاؤں. اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. پر ہم اپنی جو جھیل ہے یا ہمارے دریا ہیں یا ہمارے راستے ہیں ان کو ہمیں خود بھی صاف کرنا چاہیے. ہم صرف ٹی ایم اے پہ ڈیپینڈ کریں یا گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کریں تو ساری چیزیں گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی, ہم خود بھی مینج کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا, تو ناظرین یہ تھے ہمارے ایس پی مانسیرا, ان سے ہم نے بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تحصیل ممبر موجود تھے جنہوں نے ہمیں تمام انتظامات کے بارے میں بتایا. تو ناظرین تبدیلی تو آئی ہے. جب ہم یہاں پر آئے ہم نے پولیس کا نظام دیکھا, بہت بہترین تھا. ہم نے صفائی کے انتظامات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور اب میں ایس پی صاحب سے ایک میسج جاتے ہوئے آخری لوں گا کہ سر آپ ہمارے سندھ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میسج یہی ہے جی کہ ٹورزم کے لیے یہ بیسٹ ایریا ہے, سیکیورٹی بڑی بہتر ہے. آپ آئیں, ویلکم, ہمارے بھائی ہیں, فیملیز کے ساتھ آئیں, اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ ہم کو ویلکم کرتے دیکھیں گے. انشاءاللہ ہماری پولیس آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. ضرور آئیں, اسی سال آئیں. تھینک یو. اچھا ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا, اس جرنی کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اس خوبصورت دریا کے کنارے سے, اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جرنی بہت پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ ایک ٹورسٹ موجود ہیں جناب محمد سعد صاحب, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ یہاں پر کب آئے؟
मैं यहाँ पे लास्ट 2 डेज पहले आया हूँ और आई फील वेरी गुड हियर। पहले जिस तरह टीवी पे आम तौर पे दिखाया जाता है केपीके का नक्शा और फेस, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत तब्दीली अगर कहा जाए तो वो बात ठीक होगी। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने काम किए हैं, पुलिस का इंतजाम आपको कैसा लगा? लास्ट 2 ईयर्स पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो केपीके बिल्कुल चेंज था, और इलेक्शंस के बाद जब काफ़ी अरसा गुजर चुका है जबकि केपीके पुलिस बहुत ही फ्रेंडली, अभी यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता कि आप पुलिस से बात कर रहे हो या थोड़ा डर जाओ, बिल्कुल नहीं। वो बल्कि आपके साथ दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आपको उनसे इंटेलेक्चुअल में बहुत आसानी पैदा होती है। अच्छा, आपके अपने इलाके में कैसी सिचुएशन है पुलिस की? हमारे इलाके में पुलिस की सिचुएशन तो वैसे रवायती जैसे पंजाब पुलिस की है। थोड़ी चेंज आई तो हर जगह पे, सारी बात है, वक्त के साथ थोड़ा चेंज आता है, पर ऐसा चेंज जिस तरह केपीके पुलिस में है वो नॉर्मली देखा जाता नहीं है, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चेंज है केपीके पुलिस में, पहले से बेहतर। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मोहम्मद साद संधू साहब मौजूद थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगा। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारी इस जर्नी का इख्तिताम होता है, जो तकरीबन आप हमारे चैनल पर पूरी देखेंगे, जो शुरू से लेकर हमने जहाँ से सफर स्टार्ट किया और यहाँ तक का सफर हमने आपको दिखाया, कितने मुश्किल गुजार रास्ते थे वो सब आपको दिखाए, पुलिस के इंतजाम दिखाए, जो खूबसूरती थी नारायण की वो हमने आपको दिखाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये जर्नी पसंद आएगी, और ये जो मैक्स मीडिया की तरफ से ये प्रोडक्शन है हमारी, और ये आप लोगों के लिए बनाई गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और आप अपनी आरा का भी जरूर इजहार करेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इस खूबसूरत वादी में से इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।